بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایٹین ورلڈ پر سیزن 5 کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سیزن 5 کے آغاز میں 1909 عیسوی کا سرکجی ریلوے اسٹیشن دکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سلطان عبدالحمید کو ریلوے اسٹیشن کے اندر بچے کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ سلطان حضرت اسٹیشن سے ہوتے ہوئے پلیٹ فارم کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ سلطان جیسے ہی پلیٹ فارم کی جانب بڑھتے ہیں تو ٹرین وہاں آ کر رکتی ہے اور اس وقت بہت زیادہ دھواں بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان حضرت کو ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا دکھایا جاتا ہے۔ نوجوان ٹرین کے ڈبے میں داخل ہوتا ہے اور سلطان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے جناب؟ سلطان فرماتے ہیں بیٹا میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا۔ پھر سلطان اپنی جیب سے ایک سکہ نکالتے ہیں، نوجوان کو سکہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا مجھے کیمبر کا پانی خرید کر دے سکتے ہو؟ میں ایک آخری بار پایا تخت کا پانی پینا چاہتا ہوں۔ سلطان اپنے ساتھ بیٹھے بچے کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، پھر نوجوان پانی کی بوتل لے آتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں بیٹے اللہ آپ سے راضی ہو، آؤ بیٹھو یہاں۔ اس کے بعد ٹرین ہارن بجاتی ہے اور چل پڑتی ہے۔ پھر سلطان فرماتے ہیں نوجوان سلطان عثمان دوم جینیسری کی بغاوت کی وجہ سے تخت سے اتارے گئے اور ملک بدر ہو گئے تھے۔ انہیں محل سے لے جایا گیا اور یدی کول کے زندان میں قید ہوئے۔ ماضی میں انہوں نے جامعہ آیا صوفیہ کے پیچھے ایک چشمہ بنایا تھا۔ جب انہیں سزائے موت دی جا رہی تھی تو انہیں پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اس چشمے کا پانی پینا چاہتے تھے۔ غداروں نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے یدی کول کے قید خانے میں نوجوان عثمان دوم کو قتل کر دیا۔ مرنے سے پہلے وہ پانی تک پی نہ سکے۔ اس عظیم انسان نے چشموں کے سمندر سے پانی کا ایک قطرہ چاہا۔ انہوں نے خنجر کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ نہیں پی سکتے ہیں۔ نوجوان کہتا کہ وہ اس چشمے کے پانی کی ایک بوند چاہتے تھے۔ خنجر پر اپنے آنسو کو گراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی یہاں ہے۔ سلطان فرماتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو خنجر کے بغیر نہیں دیکھا بیٹے۔ پھر چھوٹے معصوم بچے کو دکھایا جاتا ہے جو باہر کے نظارے سے لطف اندوز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد منظر پلٹتا ہے، سلطان حضرت سلانیک کے محل پہنچتے ہیں۔ سپاہی وہاں پر انجان بنے رہتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں یا اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما۔ وہاں کھڑا نوجوان کہتا کہ سلانیک میں واقع الاطینی حویلی کو آپ کی جلا وطنی کی جگہ کے طور پر منتخب کیا گیا ہے آفندی۔ پھر سلطان حضرت بسم اللہ پڑھ کر حویلی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے بہت سی خواتین بچے بھی دکھائے جاتے ہیں۔ پھر جو خواتین سلطان کے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں، آگے چلنے والا نوجوان کہتا کہ آپ تھک گئی ہوں گی خاتون، اس سانپ کے بچے کو مجھے دے دیں۔ پھر سلطان حضرت غصے سے پیچھے دیکھتے ہیں اور اپنی جیب سے پستول نکالنے ہی والے ہوتے ہیں، لیکن پھر دوسرا نوجوان بچے کو پیار سے لے لیتا ہے۔ سلطان حضرت کافی بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سلطان وہاں جا کر نقشوں کو دیکھتے ہیں اور مختلف تصاویر کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس نقشے کے ساتھ ایک کاغذ پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سلطان اسے کھول کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک کو بندوق سے اپنی طاقت ملی اور ہم میں سے ایک وکیل تھا۔ ہم میں سے ایک نے آپ کو اپنے قلم سے مارا اور ایک نے اپنے پیسوں سے ایک وقت حاصل کر رہا تھا اور ایک طاقت کے ساتھ جو اس نے بارودی سرنگوں سے حاصل کی، اور میں نے آپ کو پاشا کے نشان سے شکست دی۔ آخر کار آپ ہار گئے۔ اس دن میں نے آپ کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا جس دن ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ آپ نے جو نشان مجھے دیا وہی اصل طاقت کا منبع ہے۔ پاشا کے نشان کے پیچھے کون تھا آپ جان جائیں گے۔ جب آپ اس پاشا کے تمغے کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے میں کون ہوں۔ سلطان حضرت دیوار پر لگے تمغے اور گھڑی کو دیکھتے ہیں۔ پھر سلطان تمغے کو اتار کر اسے پیچھے کی جانب سے دیکھتے ہیں۔ پھر وہی نوجوان سلطان کے پاس آ جاتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں یہ بیٹا آفندی ہے، انہوں نے میرا تخت لے کر محکوم بنا دیا تاکہ وہ یہ نقشہ بنا سکیں۔ ریاست کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ میں نے انہیں اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہ دیا، انکار کر دیا۔ میں نے اپنی ریاست کی دن رات 33 سال تک خدمت کی۔ سب سے بہتر جو میں کر سکتا تھا وہ کیا۔ میں نے اپنا حلف پورا کیا۔ میرے خیالات اور خدشات ہمیشہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے رہے ہیں۔ میں نے یونانیوں کو شکست دی،
पूरी दुनिया के खिलाफ मैं मजबूती और एजाज के साथ खड़ा रहा। मैंने कभी किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं पहुंचाई। मैं अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करता था। लेकिन मेरे प्यारे बेटे, किस्मत मुझे यहाँ ले आई। जिन लोगों ने मुझे गिरा दिया वो एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन इनके वालिद मुख्तलिफ से हैं। अब ये वाजे नहीं हो सकता कि हमारी रियासत का मालिक कौन है। अल्लाह हमारे मुस्तकबिल को खुशहाली अता करे। फिर वही छोटा मासूम बच्चा सुल्तान के पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है बाबा। सुल्तान फरमाते हैं, क्या आपको सर्दी लग रही है बेटे? फिर सुल्तान नौजवान से कहते हैं कि हमारे पास कोई कंबल है। पीछे खड़ी खातून कहती है कि नहीं आफंदी। फिर सुल्तान बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बिठाते हैं और सोफे पर पड़ी चादर लेकर ये फरमाते हैं कि आइए आपको ढांपते हैं बेटे। मतलब ये कि सुल्तान के पास सर्दी से बचने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं था और वो मासूम बच्चों और अपने घर वालों को लेकर दर बदर हो गए। नाजरीन, चलिए अब असल कहानी शुरू होती है। पाया तख्त में सुबह का मंजर दिखाया जाता है। तहसीन पाशा, सलीम आफंदी, अहमद जलालुद्दीन और जुल्फू इस्माइल पाशा सुल्तान का इंतजार कर रहे होते हैं। जुल्फू कहते हैं कि ये पुराने दौर के इख्तिताम की आवाज है। ये पीतल का बैंड कासिद है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। फिर सुल्तान के मजीद वुज़रा को भी दिखाया जाता है। जुल्फू मजीद कहते हैं कि वो बहुत सारी मुखालिफ आवाजें होंगी। हर नया दौर अपने साथ मसाइल लाता है, ये आम बात है। अहम चीज रियासत का कायम रहना है। अहमद जलालुद्दीन कहते हैं कि कोई भी तकरीब तैयार करना ठीक है। अहम बात यह है कि रियासत और इसका नज़्मो ज़ब्त कायम रहे। फिर एक नए सुल्तान को अंदर आते दिखाया जाता है। सिपाही मुबारक हो, हमारी रियासत कायम रहे के नारे बुलंद करते हैं। वो सुल्तान सीधा जाकर अपनी मसनद पर बैठ जाते हैं। तहसीन सबसे पहले सुल्तान को एक तोहफा देते हैं और कहते हैं कि हमारी रियासत हमेशा कायम रहे। फिर यही बूढ़ा शख्स असल में ऑल नून फरीद पाशा के नाम से पुकारा जाता है और वो सीधा सुल्तान के दरबार में पहुंचता है। सुल्तान हजरत फरमाते हैं कि ऑल नून फरीद पाशा वजीर आजम का मनसब मुबारक हो। ऑल नून कहता है कि मेरे बादशाह, मुल्क और अवाम आपकी है। सुल्तान फरमाते हैं मुल्क अल्लाह की मलकियत है और अवाम तारीख से ताल्लुक रखते हैं। ऑल नून कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये फर्ज सौंपा। मैं आपकी खिदमत में रियासत के वफादार की हैसियत से रहूंगा। मैं अपना हल्फ पूरा करूंगा और हमेशा वफादार रहूंगा। सुल्तान फरमाते हैं इंशाअल्लाह आपको जो सदर आजम की मोहर अता की है इसका गलत इस्तेमाल न करना और इसे रियासत के खिलाफ बुरे अजाइम के लिए इस्तेमाल हरगिज न करना। ऑल नून कहता है कि इंशाअल्लाह सुल्तान। फिर सुल्तान फरमाते हैं क्या आप जो काबीना कायम करने जा रहे थे इसका फैसला कर लिया? ऑल नून कहते कि क्या मैं इसका फैसला करूंगा सुल्तान? क्या आप रियासत पे अपने आबाओ अजदाद की तरह से हुकूमत नहीं करते? कानून, इस्लाहात, मशावरत ये वो चीजें हैं जो हजूर की अजमत को नुकसान पहुंचा रही हैं। सुल्तान फरमाते हैं नहीं पाशा, मशावरत सुन्नत है, मेरे अल्फाज कानून नहीं है। इस रियासत का एक तरीका और निजाम है, इसमें कानून और निजाम मौजूद है। आपको और मुझे इनकी तामील करने की जरूरत है। आप वुज़रा का इंतखाब करेंगे और मैं सिर्फ शेखुल इस्लाम का इंतखाब करूंगा, वजीर दिफा, वजीर कानून और नाज़मीन का। वजीर आजम कहता है कि मेरे सुल्तान, रियासत घर पे आपकी हुक्मरानी है। मैं वुज़रा के इंतखाब के लिए काम शुरू करता हूँ क्योंकि आप खुली मुशावरत कर रहे हैं सुल्तान। मुझे वजीर कानून के लिए मशवरे मिल सकते हैं। सुल्तान फरमाते हैं मैं आपका मशवरा लूंगा पाशा। आप जिन वुज़रा का इंतखाब करते हैं इनमें वफादारी की खसूसियत होनी चाहिए। काबिलियत हो सकती है लेकिन अगर वफादारी न हो वो इस काबिलियत को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप इनमें से एक नहीं होंगे पाशा। दूसरी तरफ महमूद पाशा को दिखाया जाता है। वो इत्र की बोतल खोलकर उसके ढक्कन से कागज निकालते हैं। लिखा होता है कि मेरे प्यारे बाबा, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप बहुत सारी बुराइयों से बच गए हैं। आप भी इस पर काबू पालेंगे। मेरी बातें बंदरगाह पे अधूरी रह गई थी बाबा। अब हम सब आजादी के करीब हैं। हमारा मंसूबा और आप जैसे मजबूत पाशा की वफादारी हमारे लिए आजादी लाएगी। हमारी तंजीम इसको हासिल करेगी। मेरे वालिद, इस मुकद्दस तंजीम में आपका भी एक मकाम होगा, चाहे आप ये चाहते हैं या नहीं।
آپ کے دل میں آزادی کا پیار رہے اور آپ کی رگوں میں اس آزادی کے لیے لڑنے کی طاقت ہے۔ میں صرف اس صورتحال کی اطلاع دے رہا ہوں۔ آپ کا جلد صحت یاب ہونا میری سب سے بڑی خواہش ہے بابا، کیونکہ ہم آزادی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے تو میں آپ سے ملنے کی امید کرتا ہوں۔ پھر محمود پاشا اس کاغذ کو آگ لگاتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کاغذ صباح الدین کی جانب سے موصول ہوتا ہے۔ پھر ایک نوجوان وہاں دوڑا چلا آتا ہے۔ محمود کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ابھی رات کا کھانے کا وقت تو ہے نہیں، تم اتنی عجلت میں کیوں ہو بیٹے؟ رات کے کھانے کی بات کرنے پر مجھے فوراً بھوک لگ گئی۔ کیا ہمیں رات کے کھانے کے اوقات کو پہلے گھنٹے میں منتقل کرنا چاہیے؟ نوجوان کہتا ہے کہ میں کچھ خبریں لایا ہوں، فرید پاشا وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ محمود کہتے ہیں کہ فرید پاشا وزیر اعظم بن گئے کیا؟ مجھے محل لے جاؤ، مجھے جلدی محل لے کر چلو۔ محمود پاشا ویل چیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نوجوان جلدی سے ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے۔ تحسین پاشا سلطان حضرت کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں سفیر آ گئے ہیں، وہ مرزا ٹیک کے فیصلے سنانے آئے ہیں۔ سلطان ایک کاغذ تحسین کو دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ مرزا ٹیک میں ہونے والے فیصلے ہیں پاشا۔ تحسین کہتے ہیں کیا ہمیں معلومات مل گئی ہے سلطان؟ سلطان فرماتے ہیں ہر طرح کی معلومات، جب تک ہم انہیں نظر انداز نہیں کرتے پاشا، ہم تیسرا فیصلہ نہیں جان سکے۔ انشاءاللہ ہم جان جائیں گے۔ تحسین کہتے ہیں سلطان کیا ہمیں سفیر سے ملنا چاہیے؟ سلطان فرماتے ہیں نہیں، ہم ان کی باتیں راستے میں سنیں گے۔ تحسین کہتے ہیں سلطان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سلطان فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم پاشا، سفیر بتائیں گے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ پھر اتنے میں وہاں محمود پاشا محل کی راہداری میں پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان حضرت بھی دربار سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ محمود کہتا ہے کہ میں گھر پر غم زدہ ہو رہا تھا، میں معذور ہوں لیکن میں ابھی مردہ نہیں ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بول سکتا ہوں، میرے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں سلطان، اور ہمیں صدر اعظم کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ سلطان فرماتے ہیں آپ اپنی صحت کی دیکھ بھال کریں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے زیادہ کھانا تھا۔ سین فلیش بیک میں جاتا ہے۔ محمود سوچتے ہیں جہاں صباح الدین بندرگاہ پر کہتا ہے اس ملک کے بچے ہی اس ملک کو آزاد کریں گے اور ہم پایا تخت کے ٹکڑے کر دیں گے، پھر وہ اپنے ہی باپ کو نیچے پھینک دیتا ہے اور کہتا کہ مدد کریں لوگوں، آپ کے پاشا کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ سین فلیش بیک سے واپس آتا ہے۔ محمود کہتے ہیں کہ جی سلطان، یہ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے تھا۔ پھر سلطان احمد جلال الدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا زخم کیسا ہے؟ سین ایک مرتبہ پھر سے فلیش بیک میں جاتا ہے جہاں احمد جلال الدین ونڈو کا پردہ کھینچ لیتے ہیں، ایک گولی لگتی ہے، چھڑی اور دستانے نیچے گر جاتے ہیں۔ سین فلیش بیک سے واپس آتا ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں سلطان، لیکن اس نے ایک نشان چھوڑا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ پاشا کسی نصیحت سے زخم کا نشان بہتر ہے، کیا ہم خلیل خالد صاحب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ احمد جلال الدین کہتے ہیں کہ سلطان تاتار اور خلیل خالد پیٹرز برگ پہنچ چکے ہیں، وہ آپ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ پھر احمد کہتے ہیں کیا سلطان منزل مقصود قریب ہے؟ سلطان فرماتے ہیں سفیر منزل کا بتائیں گے پاشا۔ اس کے بعد سلطان حضرت محل سے باہر آ جاتے ہیں۔ روسی سفیر کہتا کہ عالیجہ حضرت ہم مرصدیق میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم راستے میں بات کرتے ہوئے اپنی منزل تک جائیں گے۔ روسی سفیر کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ منزل کہاں ہے؟ سلطان فرماتے ہیں آپ اس کا تعین کریں گے۔ پھر وہ سب لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر سلطان حضرت سفیروں کو لے کر محل کے باغ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم پہلے 2 فیصلوں کے بارے میں جانتے ہیں، تیسرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ روسی سفیر کہتا ہے کہ نئی حکمرانی قائم ہونے کے بعد مختلف قومیتوں کے لوگوں کو جمع کر کے اور بین الاقوامی معاہدوں کو قبول کر کے ایک سول تنظیم بن جائے گی۔ آئین کے مطابق ایک ہی قومیت کے حامل افراد اسی علاقے میں رہیں گے اور علاقے کو قوموں کے مطابق منظم کیا جائے گا۔ سلطان فرماتے ہیں احمد جلال الدین پاشا، میں نے سنا ہے کہ پایا تخت میں غلاموں کی غیر قانونی نیلامی ہو رہی ہے، پایا تخت کے امیر ترین لوگ اس میں شریک ہیں، چلیں انہیں صحرا میں آزاد کر دیں۔ احمد پاشا کہتے ہیں جیسے حکم سلطان آپ کا۔
फिर सुल्तान फरमाते हैं तो आप कहते हैं सफीर आफंदी कि हमें ईसाइयों को एक इलाके में और दूसरे इलाके में मुसलमानों को जमा करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। हम रुमेलिया में तमाम मुसलमानों को भेज सकते हैं जहां से वो कूनिया आए थे। तो पूरी रुमेलिया में ईसाई आबादी है। सफीर अफंदी, उस्मानिया में सिर्फ एक किस्म के लोग हैं और वो हैं उस्मानी। हम अंग्रेजों की ख्वाहिश से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होने देंगे। सफीर कहता है कि सुल्तान, अंग्रेजों का इससे क्या वास्ता है? सुल्तान फरमाते हैं ये अंग्रेजों का मंसूबा है रियासत को कौमों में तकसीम करना। फिर भी मत भूलना ऑस्ट्रिया और रूस दोनों ही एक सल्तनत है। आज जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है वो कल आपके साथ भी होगा। अंग्रेज आप लोगों के लिए भी मंसूबे बना रहे हैं, वो इससे मुनाफा कमाएंगे। यकीनन आपका मकसद बल्कान के लोगों को भी मुश्तइल करना है और इन्हें हमसे अलग करना है। लेकिन बल्कान एक ऐसा ही बैरल है जिसमें बम है, इससे वो तबाह हो जाता है जब आग लग जाती है। आपको लगता है कि आप अपने साथ ले जाने वाली मिशेल से रुमेलिया को रोशन करेंगे, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि आप बारूद से भरी हुई सुरंग में दाखिल हो रहे हैं। हम एक साथ गुलामों की नीलामी पर जाएंगे, तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ अहमद जलालुद्दीन सोगोतलू उस्मान के पास पहुंचते हैं। वो कहता कि हमारे सुल्तान गुलामों की नीलामी में जा रहे हैं। उस्मान कहता कि तब ऑपरेशन बका के लिए होगा। अकबा का मतलब है कि गुलामों को आजाद करना। अहमद जलालुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान ने महीनों कबल हमें अहकामात दिए थे, लेकिन वो पार्टी जिसको अकबा जाना था वो जालिम लोग निकले। उस्मान कहता कि पाशा, हम गैर रिवायती जंगी ताकतों के साथ कार्रवाई जारी रखेंगे। हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन और कौन है जो इन्हें खास बना देता है। अहमद कहता कि हम नहीं जानते और वो भी नहीं जानते कि हम कौन है। उस्मान कहता तो अंग्रेज मरसदीक मुआहदे में शामिल होंगे, इसीलिए सुल्तान ने अकबा का हुक्म दिया। अहमद जलालुद्दीन कहते हैं कि हम अंग्रेजी पर ऑस्ट्रिया और रूसियों के लिए अपना रद्द अमल जाहिर करेंगे। उस्मान इन गैर रिवायती जंगी कुव्वतों को एक कोड टेलीग्राम अरसाल करें, इन्हें फौरन ही ऑपरेशन शुरू करने दें। फिर उस्मान जल्दी से टेलीग्राम भेजने लगता है। मंजर पलटता है, अकबा के सहरा दिखाए जाते हैं। फिर वहाँ पर खेमे में एक नए लिबास की कौमियत को दिखाया जाता है। एक सिपाही उसके पास आता है और कहता है कि आफंदी, हम उस्मानी टेलीग्राफ लाइन में दरअंदाजी करने में कामयाब रहे हैं। हमने कोड हल कर लिया है। अब्दुल हमीद ने अकबा में अपनी यूनिटों को हम पे हमला करने का हुक्म दिया। फिर सरदार कागज लेकर झोपड़ी में दाखिल हो जाता है। वो अंदर जाकर कहता कि कमांडर अशरफ अजीज, और कागज उसके मुंह पर फेंक देता है। कमांडर अशरफ कहता तो आपको खबर मिली। पहला शख्स कहता कि हम जानते हैं कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मकामी लोगों को मुनज़्ज़िम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन्हें फौजी और कारकुन बनाना चाहते हैं, हम ये भी जानते हैं। कमांडर अशरफ कहता है कि मुहिबे वतन लोगों के बारे में बात करना छोड़ दें और मुझे बताएं कि उन्होंने आपको कितने पैसे दिए हैं जो आपको खरीदते हैं गद्दार कुत्ते। पहला शख्स कहता कि अशरफ अजीज, मुझे खरीदने के लिए इतनी रकम नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी जगह का किराया मिलता है। ये झंडा जो आपने ऊपर देखा वो मेरे कबीले का झंडा है। किसी दिन ये इन जमीनों पर छा जाएगा, क्योंकि हम अकबा और सहरा के मालिक हैं। हमारी जमीनों में आपके लिए जगह या अमन नहीं है। आपका अब्दुल हमीद सिर्फ एक सहरा को मट्टी में बदल सकता है। अशरफ अजीज कहता कि हर राज आप एक लंबे अरसे से तकलीफ में हैं, आप हवा को शिकस्त नहीं दे सकते। हराज कहता कि आपके अब्दुल हमीद ने जिस कमांडर को हुक्म दिया वो मेरा कैदी है और वो ये नहीं जानता है। ये सहरा कमजोरी को खत्म नहीं करते हैं, वो आपको सहराई तूफान की तरह मारते हैं और इससे पहले कि आपको मालूम हो जाए आपके फेफड़ों में रेत भर जाती है। अशरफ अजीज कहते हैं कि हम सहरा के मालिक हैं, हम सहरा में तूफान हैं, लेकिन मैं तुम्हारे फेफड़ों को रेत के बजाय खून से भर दूंगा। वो झंडा आपका और आपके साथियों का कफन होगा, मैं कसम खाता हूँ। हर्राज कहता कि इर्द गिर्द देखो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तुम कहाँ खड़े हो क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ा था। चलो मुझ पर हमला करो, अगर आपके पास ये सहरा है तो इसकी हिफाजत करें। अशरफ अजीज कहते हैं क्या आपने मुझे पकड़ लिया या मैंने आपको इसकी इजाजत दी? हर्राज कहता कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया,
कोई मुझे कुछ करने की इजाजत नहीं दे सकता। अशरफ अजीज कहते हैं मैं पहले ही कर चुका, मैंने आपको इजाजत दी क्योंकि आखिरी लम्हे में अपने दुश्मनों से आमने सामने बात करने में बहुत राहत मिलती है। सबसे ज्यादा सच बेहतरीन गुफ्तगू वहाँ की जाती है। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि इसे जहन में रखें, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। हर्राज कहता कि अब कोई बात नहीं अशरफ अजीज, बस मुझे ये बताओ कि आपके सिपाही कहाँ हैं। अशरफ अजीज कहता है कि आप कहते हैं कि आप सहरा के मालिक हैं, आप सब कुछ जानते हैं जो सहरा में होता है। अगर आपको ये मालूम नहीं हो सकता कि मेरे आदमी कहाँ हैं तो आप मर जाएंगे। हर्राज कहता कि हाँ, मैं अशरफ अजीज की मौत बनूंगा। अशरफ अजीज कहते हैं कि दरअसल आप मर जाएंगे अगर आपको मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है। हर्राज परेशान होकर कहता है कैसे? अशरफ अजीज कहते हैं आप समझ जाएंगे, हम पैगाम रसा कबूतर का इंतजार कर रहे थे, हम हमले के लिए अपने सुल्तान के टेलीग्राफ का इंतजार कर रहे थे। फिर अशरफ अजीज एक सीटी बजाते हैं। इसके बाद रेत से बहुत से आदमी बरामद होते हैं और वो उठते ही बंदूकों से हमला कर देते हैं। हर्राज खेमे से बाहर देखता है तो अफरा तफरी मची होती है और उसके तमाम लोग कत्ल किए जा रहे होते हैं। फिर हर्राज और अशरफ अजीज की खेमे में लड़ाई शुरू हो जाती है और बाहर हर्राज के तमाम आदमी फायरिंग की जद में होते हैं। इसके बाद हर्राज संदूक से बहुत सी सोने की थैलियां निकालता है और कहता है कि ये ले लो, अगर आप चाहते हैं तो और भी हैं, बस मेरी जान बख्श दो। अशरफ अजीज थैली लेकर उसका मुंह खोलते हैं और उसे हर्राज पर ही पलटा देते हैं। अशरफ अजीज कहता है कि मौत रिश्वत नहीं लेती हर्राज। फिर हर्राज अशरफ अजीज को गिरेबान से पकड़कर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जो भी अपनी जमीन सोने के एवज बेचता है, इसके पास मरने के बाद दफन होने के लिए कोई जमीन नहीं होगी। फिर अशरफ अजीज हर्राज की मजीद पिटाई करते हैं और आखिर में पिस्तौल लेकर उस पर फायर कर देते हैं। उसका झंडा उतार कर उसके मुंह पर फेंक देते हैं। फिर अशरफ अजीज बाहर आकर हर्राज के बाकी बच जाने वाले मुहाफिजों को भी कत्ल कर देते हैं। इसके बाद अशरफ अजीज ऐलान करते हैं कि गोलियां मत चलाओ। इसके बाद हर्राज का आदमी राइफल लेकर अशरफ अजीज पर तान लेता है, लेकिन उसे वो चलानी नहीं आती। अशरफ अजीज कहते हैं कि अगर आप अंग्रेजी बंदूक लेते हैं तो आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका जानना होगा, लेकिन वो आपको नहीं सिखाएंगे। फिर अशरफ अजीज उसे भी कत्ल कर देते हैं। फिर अशरफ अजीज मरने वाले डाकुओं के चेहरों से निकाब हटाते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजों ने न सिर्फ हथियार भेजे बल्कि खुद भी यहाँ आए। फिर अशरफ अजीज कहते हैं कि मेरे शेर नौजवानों, नाकाबिले शिकस्त रहना। फिर वो अपने आदमी को कहते हैं कि जख्मियों को करीब तरीन डॉक्टर के पास लेकर जाएं, टेलीग्राम लाइन को महफूज करें और सिफारत खाने को आगाह करें कि हमने अकबा में अंग्रेजों से ताउन करने वाले डाकुओं को रोक दिया है। अकबा अब हमारा है, सारी दुनिया को ये जानने दो। हमारी रियासत रेलवे की तामीर करने जा रही है, हम सब का मंसूबा बर्बाद करने वाले हैं। अंदर सोना है हुसैन, ये हमारा हक है, हमारा माल गनीमत है, इसे ले लो और जरूरतमंद लोगों में बांट दो, और अंदर जो आदमी पड़ा है इसे बहरे अहमर में फेंक दो। हुसैन कहता है जो कमांडर हुक्म आपका। इसके बाद पाया तख्त में एक नौजवान दरसगाह में लोगों को लेक्चर दे रहा होता है। वो कहता है कि ये मजबूत आदमी जिसे आप मेरे साथ देखते हैं वो मोरितानियाई अदरान है। ये अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन जबान में रवानी रखता है। वो कोई भी काम संभाल सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे अपना बग्गीबान या अपनी गाड़ी का घोड़ा बना सकते हैं। ये आपका माली है, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि इससे वो काम करवाया जाए जिसके लिए ये है। मैं 1500 से नीलामी का आगाज करता हूँ। फिर एक शख्स 1600 कहता है, एक और शख्स 1800 की बोली लगाता है, एक और शख्स 1850 की बोली लगाता है। ताजिर कहता है मैं इसे बेच रहा हूँ और ये बिक गया है। जिस जगह पर बोली चल रही होती है उसकी दूसरी मंजिल में सुल्तान हजरत तशरीफ फरमा होते हैं। रूसी सफीर तहसीन पाशा भी उनके साथ मौजूद होते हैं। वो इस बोली को खुद सुन सकते हैं। सुल्तान फरमाते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी नौआबादियात से इनको लेने के बाद वो इन लोगों को अशिया की तरह बेच रहे हैं। जब तक निकाब नहीं उतर जाते मगरबी रियासत की यही हालत रहेगी। और नाजरीन, इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ इख्तिताम हुआ।